હાલો, મારું નામ રોજાસરા નરેન્દ્ર હેમુભાઈ છે. હું બીએસસી મેથેમેટિક્સમાંથી આવું છું. આ શિબિરમાંથી મને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે. તો પહેલાં મને શું લાગતું હતું કે આ ધન છે, રૂપ છે કે આ પદવી છે, આપણને કેમ બધું ગાડી બાડી મળી જાય તો આપણને એમ થઈ ગયા ના આપણને સુખ મળી ગયું. પણ આ શિબિર ભરીને મને એવું લાગે છે કે ના કે એવું હોય તો એ ન સારું. મને આ शिविर भरीने એવું खबर पड़ी कि जिंदा रहना और जीना दोनों अलग अलग बात है। और मेरे साथ एक घटना घटी थी जो उसमें क्या था, मैं जब मेरे साथ हॉस्टल में रहते ना वो હું એની સાથે જતો હતો તો એને મને કીધું કે શું કરે છે, તો મેં ખાલી એને એમ કીધું કે બીએસસી કરું છું એમ. તો એને મને આન્સર આપ્યો કે બસ ખાલી બીએસસી જ કરે. તો ત્યારે મને આમ થોડુંક દુઃખી થઈ ગયું. પણ આ શિબિર ભરીને એવું લાગે છે કે ના આપણી ઉપર વિશ્વાસ હોય ને તો બધું આપણે આમ કરી શકીએ છીએ. સો આપને આ શિબિર ભરીને એવું ઘણું બધું મને જાણવા મળ્યું. તો મારી એવી ઈચ્છા છે કે તો તમે પણ આવી શિબિર ભરો. ઓકે, થેન્ક યુ. મારું નામ જસ્મીન રાણપરિયા છે. હું કેમિસ્ટ્રી ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી બિલોંગ કરું છું. આજના કાર્યક્રમમાં જે આપણા શિક્ષકોએ બધાએ સમર્થન આપ્યું છે, સોમ સરે જે સમર્થન આપ્યું છે તેના માટે હું તે લોકોનો ખૂબ ધન્યવાદ કરવા માગું છું. બધા શિક્ષકો અને આપણી યુનિવર્સિટીનો પણ ધન્યવાદ કરવા માગું છું. તેઓના દ્વારા આપને જીવનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થાય તેમજ ફાયદાકારક રહે તેવું માર્ગદર્શન મળી ચૂક્યું છે. યુએચવીમાંથી આપને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું છે, ઘણું બધું શીખવા મળે છે. આજે વર્કશોપ થયો હેપીનેસ એન્ડ વેલનેસ ઉપર, તે ખૂબ જ ફાયદાકારક રહ્યો છે. ઘણા બધા એવા સૂત્રો છે જે આપણે જીવનમાં ઉપયોગ થઈ શકે છે. જેમ કે સરે વાત કરી તેમ જ્યારે આપણે ટ્રાફિકમાં હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે ખૂબ જ ગુસ્સો કરીએ છીએ, પણ જો આપણે જીવનમાં સૂત્ર અપ્લાય કરી દઈએ, યુએચવીનો જો ત્યાં પ્રયોગ કરી દઈએ તો આપણે સુખની અનુભૂતિ થાય છે, આપણે ખુશ રહીએ છીએ. ઘણા બધા એવા વસ્તુ છે જે નાની નાની વસ્તુ છે એમાં આપણે સુખ ગોતવાની વસ્તુ કરીએ તો આપણે ખૂબ જ સુખ મળી શકે છે, આપણે ખુશી થઈ શકીએ છીએ, આપણે આપણા પરિવાર સાથે, આપણા સંબંધ સાથે ખૂબ જ સારી રીતના રહી શકીએ છીએ. આ કાર્યક્રમમાં બહુ જાણવા જેવું મળ્યું છે. ઘણી બધી એવી વસ્તુ છે જે આપણા જીવનમાં ફાયદાકારક થશે. આજે નહીં તો ભવિષ્યમાં આપણા છોકરાઓ માટે આ બધી વસ્તુ ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેવામાં છે. આ ફીડબેક આ વર્કશોપમાં મને ખૂબ જ મજા આવી અને મને એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે જીવનમાં આપણે જે કરી રહ્યા છીએ એ અલગ વસ્તુ છે અને જે જીવન જીવવાનું છે એ અલગ વસ્તુ છે. હું આ બધા માટે ધન્યવાદ કહેવા માંગુ છું. मेरा नाम धार्मी वैष्णाणी है और मैं माइक्रोबायोलॉजी से हूँ। जब से ये शिविर स्टार्ट हुआ है तब से कुछ नया ही सीखने को मिला है। पहले हम ये नहीं सोचते थे कि जीना कैसे है, यहाँ पर हमने ये सीखा है कि जीना कैसे है। वरना हम क्या करते थे, जिंदा रहने में ही हमारा सारा टाइम और सब हम उसमें ही रहते थे। बट अब हमें पता चला है कि नहीं, जीना कैसे है। जीना कैसे मतलब सुखी, हमारा अल्टीमेटली गोल क्या होता है कि हमें सुखी कैसे रहना है। तो हमें सुखी कैसे रहना है ये इस शिविर से हमें पता चला है। मतलब सुखी क्या, स्वीकृति हमारी जो होती है वो उसे सुखी रहना कहते हैं। और हमें जिंदा रहने में क्या, हम हमारी शारीरिक सारी क्रियाएं को ही देखते हैं। बट ये नहीं है, ये शारीरिक क्रिया लाइक खाना हमें कुछ खाना पसंद है तो वो एक फिजिकल लेवल पे हुआ, और हमारे विचार भाव वो एक अलग तरीके से। मतलब क्या कि हमें उसमें ही ध्यान देना है, वही हमारा जीना है। जीना इसी को कहते हैं कि हर एक चीज़ को हमें स्वीकार कर लेना है, और स्वीकार करके ही हम आगे हमारी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो एक संतोष या कहते हैं ना, वो हमें उसी तरह से फील होता है और हम हैप्पी रह सकते हैं। हम किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते। वरना क्या होता है कि हम किसी और को देख के हम कुछ सीखते हैं, लेकिन वो नहीं, हमें वो उसे सीखना है, लेकिन उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए। हमारा भी कुछ एक अलग होता है। मतलब हमारी खुशी, उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है वैसा नहीं है, बट हमें हमारी खुशी खुद ढूंढनी है। तो वो जीना कैसे है उसमें सीखा जाता है। थैंक यू। મારું નામ વિવેક પાઠક છે અને હું આત્મીય કોલેજ યુનિવર્સિટીની અંદર ટીવાય બીએસસી કેમેસ્ટ્રીમાં અભ્યાસ કરું છું. અને આજની આ જીવન વિદ્યાની શિબિરમાં અમને એ જાણવા મળ્યું છે કે ઘણી વખતે તમે એવું જોઈ શકો છો કે મિત્રો છે, તમારું ફેમિલી છે, પરિવાર છે, તો એની સાથે આપણે
કોઈ સમસ્યા આપણને નડે છે, કોઈ વખત આપણે કોઈનું સ્વીકૃતિ નથી કરી શકતા, કોઈ વખત આપણને ગુસ્સો આવી જાય છે કોઈ કંઈ કશું બોલે છે તો એના માટે આમાંથી ઘણું શીખવા આપણને મળે છે. તો એમાંથી શીખવાનું એ છે કે આપણે કઈ રીતે એ બધી વસ્તુઓથી સ્થિર રહી શકીએ. કોઈ આપણને કહે તો આપણે આપણો ઓપિનિયન આપી શકીએ, આપણે બીજાને કઈ રીતે સમજી શકીએ, તો એના માટેની શિબિર છે. ઘણી વખતે આપણને એવું થાય છે કે ભાઈ કોઈ આપણને કહે છે ને આપણે ગુસ્સો કંટ્રોલ નથી કરી શકતા, તો કઈ રીતે કંટ્રોલ કરવો, તો એના વિશે આપણને આમાં સમજ મળે છે. તો કે આપણે કોઈ વસ્તુની સ્વીકૃતિ કરી શકીએ. જેમ કે કોઈ બધા માણસો જુદી જુદી પ્રકારના હોય છે અને બધા જ યુનિક માણસો હોય છે. જેમ કે કોઈ પણ પદાર્થ છે તો કે આપણે કોઈ પણ પદાર્થને ધાતુ છે તો એને આપણે ધાતુ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. કોઈ ગાય છે, પશુ છે, તો આપણે તેને ગાય અને પશુ તરીકે જ ઓળખીએ છીએ કે એનો એક સરખો વ્યવહાર હોય છે. તો એ વ્યવહાર ઉપર આપણે જ્યારે જઈએ છીએ તો માનવનું પણ એવું જ હોય છે કે કોઈ પણ સરખો વ્યવહાર આપણે કરવો જોઈએ માનવ તરીકે, તો આપણે એ જુદો જુદો વ્યવહાર કરી શકીએ. તો એ આપણને અહીં શીખવા એક મળે છે. અને બીજું એ શીખવા મળે છે કે આપણે તેને સ્થિર કઈ રીતે રાખી શકીએ. આપણે કોઈ વાર એવું વિચારી શકીએ કે આપણે કોઈ પદ અથવા સ્થાન પાસે આપણે પહોંચીએ છીએ તો ત્યાં પહોંચવા કરતાં આપણે તેને ટકાવી રાખવું એ વધારે મહત્વનું હોય છે. તો એ આપણે કઈ રીતે ટકાવી રાખવું એ પણ અહીં શીખવા મળે છે. मेरा नाम शुभम जानी है और मैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में वीरानी कॉलेज में एसवाई में स्टडी करता हूँ। और मैंने ये जीवन विद्या के 3 दिन के सेशंस अटेंड किए। उसमें से मुझको कई सारी बातें जानने को मिली। जैसे कि पहले दिन के सेशन में जो था कि जो स्किल्स के लेवल की जो शिक्षा होती है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम में स्किल्स के लेवल की ही शिक्षा होती है। मानसिकता की शिक्षा हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही कम है। तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी एजुकेशन सिस्टम में वो हमको फर्स्ट सेशंस में से सीखने को मिला। दूसरे सेशन में जो था जीने और जिंदा रहने में क्या डिफरेंस है और जिंदा रहने के लिए क्या क्या सामान चाहिए और जिंदा रहने का कोई भी सामान जीने के काम नहीं आता वो भी हमको पता चला। और उसके बाद के जो सेशंस थे उसमें दुख और सुख के बारे में सारी क्लैरिटी आ गई कि जब भी हम दुखी होते हैं तो क्या होता है, यानी कि जब कोई भी चीज़ का हम अस्वीकार करते हैं तभी हम दुखी होते हैं। स्वीकृति यानी सुख और अस्वीकृति यानी दुख, ये बात की क्लैरिटी हमें बहुत अच्छी तरह से आ गई इस सेशंस को अटेंड करने के बाद। और तीसरे दिन के सेशंस में से हमको जानने को मिला कि पूरी धरती है वो 4 अवस्थाओं में डिवाइडेड है। वो 4 अवस्था है प्राण, जीव, पदार्थ और ज्ञान। उसमें से जो ज्ञान अवस्था में आता है वो मनुष्य है, बाकी सारे पेड़ पौधे हैं, प्राणी है और निर्जीव वस्तुएं हैं। तो बाकी सारी जो अवस्था है प्राण, जीव और पदार्थ वो सारी एक दूसरे को फायदा करने के लिए, यानी कि कोई एक को उपयोग करता है तो उसको वो उसका एडवांटेज भी देता है। यानी कि एक मनुष्य ही ऐसा, इस सेशंस के पहले अटेंड करने के पहले हमें ऐसा लगता था कि मनुष्य ही एक ऐसा था कि जो है वो सारी 3 अवस्थाओं के लिए एक डिसएडवांटेज खड़ा करता था। तो अब हमको जानने को मिला कि मनुष्य में यानी कि ज्ञान अवस्था में एक वस्तु की एडिशन हो जाए, यानी कि संस्कार की एडिशन हो जाए, तो वो भी है वो तीनों यानी कि 4 अवस्थाओं के लिए एडवांटेज खड़ी कर सकता है। तो ये सारी बात की क्लैरिटी हमें ये जीवन विद्या के सेशंस अटेंड करने के बाद आई। और मैं भी मेरे अंदर जो बदलाव आया है इस सेशंस को अटेंड करने के बाद वो अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ। और ये सेशंस अरेंज करने के लिए आत्मीय यूनिवर्सिटी का और सोमदेव त्यागी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माई सेल्फ नेहल वाडोलिया फ्रॉम BSc मैथमेटिक्स। सबसे बड़ी बात तो मुझे सर की ये अच्छी लगी कि उनके आने से हमारे जीवन में कुछ नहीं ज़्यादा हद तक कई सारे बदलाव आ गए हैं। सबसे पहला तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित इस बात से हुई मैं कि हमें कुछ भी चीज़ों की स्वीकृति करने से, यानी कि व्यवस्था के प्रति स्वीकृति करने से हमें खुशी मिलती है। अगर हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो हम खुश रहते हैं। अगर किसी भी चीज़ को हमारे हक में है फिर भी हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमें जानते हैं कि ये घटना होने ही वाली है फिर भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो हम डेफिनेटली दुखी ही होने वाले हैं। अगर हम जानते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम यानी कि कोई भी घटना जो हमारे विरुद्ध है और वो होने ही वाली है फिर भी हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसके बदले में रो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो ये उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम उससे दुखी होंगे। अगर हम जानते हैं कि ये घटना होने ही वाली है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना ही चाहिए और इसी स्वीकृति से हमें खुशी मिलती है। अगर कोई भी घटना हमारे
विरुद्ध भी हो रही है, लेकिन हमें उसकी सही गलत की पहचान नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास सही का रेफरेंस नहीं है, और सही का रेफरेंस क्या है ये मुझे कुछ हद तक सर से पता चला है। और सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि हम चांद तक पहुंच गए लेकिन हम अपनों तक नहीं पहुंचे हैं, और इस बात से मैं बहुत प्रभावित हो गई हूँ। और ये बात मुझे ज़्यादा नहीं, कुछ बहुत हद तक मुझे अच्छी लगी है ये बात। और सर ने बहुत सारी बातें ऐसी बताई कि जिस बातों की वजह से मेरा जीने के प्रति नज़रिया ही बदल गया है। और मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि इस कॉलेज में आने से हमें ऐसा एटमॉस्फियर और ऐसे बहुत ही इतने बढ़िया और इतने शानदार सर और इतना अच्छा माहौल मिला है, और हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली, हमें इतनी अच्छी कि हम इस हद तक अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और हम अपने जीवन के प्रति जीने का नज़रिया भी बदल सकते हैं। सो सबसे बड़ा थैंक यू सर को और इस कॉलेज को कि जिसने हमें ऐसा वातावरण दिया है। और थैंक यू सर कि आपने हमारा जीने के प्रति नज़रिया ही बदल दिया। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम ध्रुति तेरैया है और मैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से हूँ। हमारे कॉलेज में अभी 3 दिन से ये सेशन चल रहा है, जिसके दौरान हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। जैसे आज तक मैं जीना और जिंदा ये दोनों को एक ही समझती आई हूँ, लेकिन आज मुझे उसका फ़र्क पता चला है कि जीना और जिंदा रहना दोनों अलग अलग है। और इसके साथ हमें कई सारी परिभाषाएं भी क्लियर हुई है, जैसे कि सुख क्या है, दुख क्या है, और इस सभी की परिभाषाएं हमें मिली है। मुझे लगता है कि हर कॉलेज में एक ऐसा सेशन होना ही चाहिए, क्योंकि अगर स्किल और एजुकेशन ये तो सब लोग पढ़ाते ही है, लेकिन एक दो सेशन जो हम जीवन विद्या पे करें तो हमारी जीवन को भी हम स्टडी कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इनका सेशन अटेंड कर पाए हैं, और हम अगर इसको गहराई से जाने तो हमारे जीवन के कई सारे प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप इस लेक्चर को अटेंड करने से हमारे जीवन की तरफ का नज़रिया बदल जाता है। मेरा मानना है कि ये सभी कॉलेज में होना चाहिए और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जीवन को भी पढ़ाया जा सकता है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुस्कान है। मैं आपको अपने बारे में कुछ सेशन के बारे में कुछ बताना चाहती। इन दिनों हमारे कॉलेज में वीरानी साइंस में एक सेशन चल रहा है हैप्पीनेस और वेलनेस के बारे में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ज़िंदगी कैसे जीते हैं और ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है। अभी तक हमको ये लगता है कि सभी चीज़ों को, जैसे कि भौतिक चीज़ें, हमारी रूप, रंग, पैसा और इनके बल पर हम खुश रह सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हमें हमारे संबंधों को भी संभाल के रखना चाहिए, इनको भी संवार के रखना चाहिए। सबको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए और सभी भावनाओं की स्वीकृति करना आना चाहिए। ये सेशन में हमें ये सीखने को मिला कि जीवन को कैसे जिया जाता है। वस्तुओं के साथ जो जिया जाए वो जिंदा रहना होता है, और जो अभाव के साथ जिया जाए वो झेलना होता है, और जो भावनाओं के साथ जिया जाए उसे जीना कहते हैं। जीने के लिए कुछ चीज़ें पर्याप्त होती है। जिंदा रहना वो हमारी नेसेसरी है, पर जीना वो हमारी पर्याप्तता है। अगर हम सही ढंग से जीवन जिए नहीं तो हमारे जीवन में कोई रुचि नहीं रहेगी। जीने के लिए कोई ध्येय होना चाहिए। सभी को सुखी रहना ही सभी सुखी रहे, यही हमारा ध्येय होता है। इस सेशन से हमें ये पता चला कि सुखी कैसे रहा जाता है। थैंक यू। Hello, I am Radhika Hapalia from Department of Chemistry. From this session, मैंने जो भी कहा वो मैंने सुना, लेकिन इसमें से ज़्यादा कुछ मेरे लिए ये है कि मैं पर्सनली बहुत गुस्से वाली हूँ, और मैं बहुत मेरे फ्रेंड के साथ मेरा बिहेवियर मेरे हिसाब से मेरा ठीक नहीं है, जो कि मैं ठीक करना चाहती थी। बहुत दिनों से मैंने सोचा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत रूड बिहेव करती हूँ, तो मैंने डिस्कशन के बाद ये
सोचा है कि मैं पर्सनली ट्राई करूंगी कि मैं अपने दोस्तों के साथ और सब अच्छा बिहेव करूं और इससे मेरी फैमिली में भी मेरा व्यवहार अच्छा होगा। और इसके बाद इसके आगे जो है वो मेरा गुस्सा वाला नेचर की वजह से मैं खुश भी नहीं रहती थी और किसी की बात के लिए जज करती थी। लेकिन अब मैं इसके बाद मेरे को लगता है कि ये अच्छा नहीं है और अब मैं इसके बाद ट्राई करूँगी कि मैं सबको समझ के जज करूं। सबसे अच्छा मुझे इस सेशन से यही लगा है कि सबको समझना चाहिए और सब अपनी जगह सही होते हैं और सब लोग सुख के लिए करते हैं, ये तो हमने सुना ही। और मैं भी अब ट्राई करूंगी कि मैं सबको समझूं और इसी बस सबको जज करने से पहले किसी को मैं समझने की ट्राई करूंगी। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम अंजलि व्यास है और मैं TY BSc माइक्रो में अभ्यास करती हूँ। साथ साथ में NCC भी करती हूँ। जब हमारे सर ने बोला था कि 3 दिन पहले कि 3 दिन का सेशन है, हम क्या क्या करेंगे इसमें चीज़ में, तब लगा था कि काफ़ी सॉफ्ट स्किल हो गए, लाइफ स्किल हो गए, काफ़ी अटेंड किया था। लेकिन जब किया तब पता चला कि नहीं, ज़िंदगी कुछ और ही है। पहले दिन का टॉपिक था हमारा कि एजुकेशन क्या है और मेंटालिटी क्या है, स्किल और एजुकेशन में डिफरेंस क्या क्या है, स्किल और मेंटालिटी में डिफरेंस क्या क्या है। अब तक नहीं पता था, लेकिन जब पढ़ाया गया, सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया, तब बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन का हमारा टॉपिक था कि लाइफ क्या है, लाइफ में जीना क्या है और जिंदा रहना क्या है। तब पता नहीं था कि जिंदा मैं भी रह सकती हूँ या मैं भी जी रही हूँ या जिंदा रह रही हूँ। लेकिन तभी पता चला कि नहीं, जीना एक नीड है। हम खाते हैं, पीते हैं या सोते हैं या जागते हैं, वो हमारी नीड है। लेकिन जब पता चला कि जिंदा किस चीज़ों में रहा जाता है, जैसे कि मुझे खुशी किस चीज़ में होती है, तो मैं क्या करती हूँ, उस चीज़ से मुझे पता चला कि नहीं, जीती कैसी हूँ मैं। तो जिंदा रहना कैसे किया जाता है, वो सर ने भी बहुत अच्छी तरीके से सिखाया। आज का हमारा टॉपिक था कि ह्यूमन, एनवायरनमेंट, प्राणी और ज्ञान किस किस चीज़ों से कनेक्टेड है, किस किस चीज़ों से हमें क्वेश्चन होते हैं कि हम क्या करते हैं, किस किस चीज़ों से कैसे कनेक्ट होना चाहिए, वो भी हमने सर ने सिखाया। और इन चीज़ों को कैसे हल किया जाए, वो भी सर ने हमें सिखाया। सो थैंक यू सो मच इन चीज़ों को यहाँ पे लाने के लिए और सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। माय नेम इज़ परिनाया, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो यहाँ आके हमको काफ़ी कुछ सीखने मिला। स्किल और मानसिकता में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले वो सर ने सिखाया। स्किल कोई भी व्यक्ति के पास कितनी भी हो, अगर मानसिकता अलग अलग हो तो स्टेज तो कुछ हो नहीं सकता। और दूसरी बात, भाव और विचारों के आधार पर व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। विचार लोगों के अलग अलग हो तो काफ़ी कुछ बदल सकता है। इससे हैप्पीनेस और सैडनेस पे काफ़ी असर पहुंचेगा। इसी तरह हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद सर ने बताया कि जिंदा रहने और जीने में क्या डिफरेंस है। जिंदा रहना मीन्स कोई फिजिकल थिंग्स के आधार पर जिंदा रह सकते हैं। जीने के मतलब विचार, रिस्पेक्ट और अदर वैल्यू एजुकेशन की सब कुछ बातें आ सकती है। इसी तरह अभी तक पूरे सेशन में हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इसी बात पर सर का मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। મારા જીવનકાળમાં મારા જીવનને લઈને ઘણા પ્રશ્નો હતા, તો આ પ્રશ્નોને કઈ રીતે સોલ્વ કરવા, એનું સોલ્યુશન કઈ રીતે મેળવવું, ક્યાંથી મેળવવું, એને લઈને હું ચિંતિત હતો। તો જ્યારે મેં મારી કોલેજ એટલે કે વિરાણી સાયન્સ કોલેજમાં એડમિશન લીધું, ત્યારે અમારી કોલેજમાં UHV મીન્સ કે યુનિવર્સલ હ્યુમન સેલ જીવન વિદ્યા નામનો એક કોર્સ ચાલતો હતો, જેની એક ક્રેડિટ હોય, તો અમે અટેન્ડ કરતા કે એક ક્રેડિટ હોય તો ફરજિયાત અટેન્ડ કરતા। તો અમે કોર્સ અટેન્ડ કરતા કરતા ધીમે ધીમે મને આ પ્રશ્નોમાં થોડી થોડી ક્લેરિટી આવી કે ખરેખર મારું જીવન શું, હું શું કામ જીવું છું, અને મારા જીવનના જે કંઈ પ્રશ્નો હતા એમાં થોડું થોડું સોલ્યુશન મળતું ગયું। તો આને લઈને મેં એકવાર એક યુવા સંમેલન નામનો એક વર્કશોપ અટેન્ડ કરેલો, તો ત્યાં પણ મને થોડા ઘણા પ્રશ્નોનો જવાબ મળ્યો। ત્યાર પછી મારી કોલેજમાં 3 દિવસનો વર્કશોપ થયો। આ વર્કશોપમાં મને ઘણા બધા મારા પ્રશ્નો, મારા ડાઉટ ક્લિયર થયા મારા જીવનને લઈને। જેમ કે હું 1-2 એક્સપિરિયન્સ તમારી સાથે શેર કરું તો પહેલાં ઘણા લોકો મારા વિશે ખરાબ બોલતા અથવા તો મારા વિશે ખરાબ વિચારતા, મને ઘણીવાર ખીજાતા, મારા પર ગુસ્સો કરતા। તો આવા પ્રશ્નોને લઈને હું ખૂબ ચિંતિત રહેતો અથવા તો એના સામે કંઈક રિએક્ટ કરતો।
तो आ कंटेंट मारी सामे આવ્યું मैं समझू ત્યારે મને ખબર પડી કે जो दूसरों की अक्षमता से प्रभावित होना ही हमारी अक्षमता है। તો આ વાક્ય મને ટચ થયું અને મેં એને મારા જીવનમાં ઉતાર્યું તો મને ખબર પડી કે ખરેખર જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ મારા વિશે ખરાબ વિચારે છે, મારા વિશે ખરાબ બોલે છે, તો મારે એના પર રિએક્ટ નથી થવાનું. મારે તો મારી ક્ષમતા જે છે એ પ્રમાણે જ વર્તવાનું છે. તો આ એક બાબત મને ખબર પડી અને મને એ ખબર પડી કે દરેક માણસનો એટલે કે દરેક મનુષ્યનો અલ્ટિમેટ ગોલ સુખી થવાનો હોય છે, હેપીનેસ મેળવવાનો હોય છે. તો આ હેપીનેસ કઈ રીતે મેળવવી અને બીજા સાથે કઈ રીતે વર્તવું, સમાજમાં કઈ રીતે રહેવું, પ્રકૃતિ સાથે કઈ રીતે રહેવું, આ બાબતે મને થોડીક વધારે ક્લિયર થઈ. જેમ કે હું એક્સપિરિયન્સ એક મારો શેર કરું કે મારો નાનો ભાઈ છે, એ બહુ મારી મજાક કરતો હોય, અમે બે ઘણી વખત બાંધતા હોય અથવા તો હું એના ઉપર ગુસ્સે થતો હોય, એ મારા ઉપર ગુસ્સે થતો હોય, તો આનાથી કંઈ સોલ્યુશન ન થતું. તો પહેલાં હું એના પર ગુસ્સે થતો, પછી ધીમે ધીમે આ કન્ટેન્ટ મારા જીવનમાં આવ્યું, મેં એને સમજ્યું. પછી મને ખબર પડી કે જો એ મારા ઉપર ગુસ્સે થાય છે તો મારે એના ઉપર શું રિએક્ટ કરવું, કે એના ઉપર ગુસ્સો કરવો કે શું કરવું. તો ધીમે ધીમે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો. તો આવા ઘણાય પ્રશ્નો આપણા માતા પિતા સાથેના સંબંધો હોય કે એમાં કોઈ આપણે મમ્મી પપ્પા ક્યારેક ખીજાણા હોય તો આપણે ખોટું લાગ્યું હોય અથવા તો આપણે એના ઉપર કંઈક રિએક્ટ કરતા હોય, તો આ બાબતને એવા ઘણા પ્રશ્નો સોલ્વ થયા. ઘણી વખત આપણે કોલેજે હોય, આપણા ફ્રેન્ડ્સ આપણા વિશે ખરાબ વિચારતા હોય, ખરાબ બોલતા હોય, તો આવા પ્રશ્નોથી આપણે ચિંતિત રહેતા હોય. તો મને એક ખબર પડી કે આપણે આપણું સન્માન આપણે બીજા પાસેથી ઈચ્છીએ છીએ કે લોકો મને માન આપે. પણ આ કન્ટેન્ટ મારા જીવનમાં આવ્યું ત્યારથી મને એવું લાગ્યું કે હું મારા ખુદને મારા વિચારને સન્માન આપું, મારા જીવનને સન્માન, હું ખુદ મને ટૂંકમાં હું સન્માન આપું ને મારી રીતે, એ જ મારા માટે મોટી વાત છે. મારું ટૂંકમાં ઇન શોર્ટ કહું ને તો મારું કંટ્રોલ મારા હાથમાં આવવું જોઈએ, બીજાના હાથમાં નહીં કે બીજા કઈ બોલે છે એના ઉપરથી હું મારું સન્માન મેળવું. બીજા પાસેથી કે લોકો મને બોલાવે સામેથી, કે બીજા પાસે આપણે એમ કહી કે લોકો મને સામેથી બોલાવે, મને માન આપે, આવી આશા આપણે બીજા પાસેથી નથી રાખવાની, પણ હું ખુદ પોતાને સન્માન આપું. એક આ બાબત મને ખાસ શીખવા મળી. તો મારા જીવનમાં ઘણો બધો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવ્યું મારા જીવનને લઈને, કે આવા ક્વેશ્ચન્સ હતા અને આપણા મનના વિચારો જે હતા, ભાવ કે બીજા પ્રત્યે આપણે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ, બીજા માણસો સાથે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ, કે આપણે ઘણી વખત હોય તો આપણી સાથે કોઈ ઝઘડો કરતા હોય ને તો એવા વ્યક્તિઓ સાથે આપણે સારા વ્યવહાર ન રાખતા હોય. તો આવા પ્રશ્નો લઈ અને મને ઘણી ક્લેરિટી આવી કે આપણે એ લોકો સાથે કઈ રીતે વર્તવું જોઈએ. તો થેન્ક યુ કે આવા બધા પ્રશ્નોથી હું પરિચિત થયો અને એનું સોલ્યુશન મને જે કંઈ થોડું ઘણું મળ્યું, મારી લાઈફમાં ઘણું બધું ઉપયોગી થયું. नमस्ते सभी को, मैं परेश कंडोरिया, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। जीवन विद्या परिचय शिविर से पहले मैं ऐसा मानता था कि कोई व्यक्ति गलती करता है तब वो मेरे साथ जानबूझकर गलती करता है, लेकिन परिचय शिविर में आने से बाद मुझे पता चला कि मैं मानव हूँ और दूसरा व्यक्ति भी मानव है, और हर मानव सुखी ही चाहता है अपने बारे में और दूसरों के बारे में ही सुखी चाहता है. और जब मैं गलती करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गलती से गलती हो गई, तो ऐसा समझ में आता है कि मैं ही जैसे सुख चाहता हूँ इसलिए दूसरा व्यक्ति भी सुख ही चाहता है. तो ऐसे समझ में आ रहा है कि उस व्यक्ति की कोई समझ में कमी होगी, इस कारण भी हो सकता है. और शिविर के दरमियान ही मुझे एक बार सोम भैया ने प्रश्न पूछा, तो वो प्रश्न का उत्तर मुझे देना मेरे पास उत्तर था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उत्तर दूं, लेकिन मैंने 2-3 परिचय शिविर किए हैं, इसलिए सोम भैया ने मुझे प्रश्न के उत्तर देने को मना किया. तो मुझे ऐसा लगा कि सोम भैया ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसलिए मेरी अस्वीकृति थी, इसलिए मुझे दुख हो रहा था. लेकिन अजय भैया ने बताया कि हम सभी मनुष्य सुखी होना चाहते हैं, और कई बार क्या होता है कि हम जानबूझ के अपनी सुख को छोड़ दे रहे हैं. और बाद में मैं अपने मंथन किया तो पता चला कि मुझे तो सुखी होना चाहिए, और मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, मुझे तो ये समझना है कि जीवन क्या है. बाद में पता चला और उस अस्वीकृति की भी स्वीकृति हो गई, तो मुझे फिर सुख हो गया. और जीवन विद्या परिचय से पहले मैं जब दुखी होता था तो मैं मोटिवेशन स्पीक का सहाय लेता था और कई सेमिनार भी अटेंड करता था. लेकिन उसमें क्या होता था कि उस
प्रश्न के उत्तर टेम्पररी समय तक मिल जाते थे, लेकिन वह कुछ नया प्रश्न आता था तो फिर भी मैं मोटिवेशन स्पीच का सहारा लेता था। लेकिन अब जीवन विद्या परिचय शिविर में आने से ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसा है कि जिसमें मेरा अध्ययन हो रहा है, मानव की बात हो रही है, और इस अध्ययन से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे जीवन में अभी कई घटनाओं ऐसी है कि जो मैं सुखपूर्वक जी रहा हूँ। थैंक यू। नमस्ते, मैं ध्रुति पानेरी हूँ, सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से विरानी साइंस कॉलेज में। हैप्पीनेस और वेलनेस पे श्री सोम त्यागी जी का जो एक सेमिनार हमारे यहाँ पे कंडक्ट हुआ, उससे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली। मैं काफ़ी क्लियर हो सकी अपनी लाइफ को लेकर। आज तक मुझे ये पता नहीं था कि मैं कैसे जी रही हूँ या फिर मैं सिर्फ जिंदा रह रही हूँ। ये जो हमारा सेमिनार था उसके बाद मुझे काफ़ी क्लियर हुआ कि जीने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं मैं उन्हें छोड़ रही थी, और कहीं ना कहीं जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें हैं मैं उसके पीछे भाग रही थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि सुख के लिए और दुख के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ या फिर वातावरण जिम्मेदार है। लेकिन आज मुझे पता चला कि मुझे सुख के बारे में कोई क्लियरेंस था ही नहीं। अब मुझे जब सेमिनार में आके ये बहुत अच्छे से फील हुआ कि सुखी होने की जो चाबी है वो असल में क्या है, और ये सर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। और दूसरी जो मेरी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं लाइफ में वो ये है कि सुखी होना बहुत आसान है, लेकिन हमने खुद उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। और दूसरा, हमारी मानसिकता हमारे जीवन पर काफ़ी असर करती है, तो मानसिकता को हम कैसे ज़्यादा क्लियर बना सके। हमारी मानसिकता और हमारी एजुकेशन सिस्टम दोनों का हमारी लाइफ में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। एजुकेशन का मानसिकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक अच्छी मानसिकता वाला व्यक्ति लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ सकता है। ये सर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। और इस सेमिनार के दौरान मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि अगर आप लाइफ में अपने थॉट्स को लेकर क्लियर होना चाहते हैं तो वेलनेस और हैप्पीनेस का सर का जो ये सेमिनार है वो बहुत ही मुझे फ़ायदेमंद रहा। और शायद अभी मुझे ये चीज़ें शायद गौण लगे कि मुझे अभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे रिलेशनशिप को समझने में और लाइफ को समझने में और खुश रहने में मुझे इस सेमिनार ने बहुत वर्क किया है। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करती हूँ कि ये सेमिनार बहुत ही फ़ायदेमंद है और सबको ये अटेंड करना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम आदित्य कोटक है। मैं FY BSc बायोकेमिस्ट्री में हूँ। मैं विरानी साइंस कॉलेज में पढ़ता हूँ। सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये शिविर जो हैप्पीनेस एंड वेलनेस शिविर है वो ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि इस शिविर को अटेंड करने के बाद मेरी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आई है। जिन चीज़ों के बारे में मुझे कन्फ्यूजन था वो बहुत अच्छे से दूर हुआ है। पहली बात तो ये, इन 3 दिनों की शिविर में हमने मेन 3 टॉपिक्स लिए थे। सबसे पहला था मानसिकता। तो मुझे लोगों की मानसिकताओं के बारे में बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली है। मुझे ये जानने को मिला है कि क्यों उसको एजुकेशन में अच्छे से मतलब अप्लाई नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये कि मैंने जाना कि ज़िंदा रहना और जीना दोनों अलग चीज़ें हैं, जो कि आज तक मैं मान रहा था कि मैं जी रहा हूँ, लेकिन असलियत में मैं ज़िंदा था। तो मैंने जो भी सीखा कि मुझे जीने के लिए क्या करना होगा वो मैं इस शिविर के बाद ज़रूर ट्राई करूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूँ। तीसरी चीज़ कि मैंने ये सीखा कि जो हमारा जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है इस अर्थ पे, हम सबका एक ही अल्टीमेट गोल है सुख। भले ही उस तक जाने के रास्ते अलग अलग है, भले ही वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, लेकिन हमारा सबका एम है सुख। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम मानते हैं कि आइडियल है, तो वो आइडियल चीज़ को प्राप्त करना हम अभी तक इम्पॉसिबल मानते थे, क्योंकि हमारा उस तक जाने का वे गलत था। इस शिविर को अटेंड करने के बाद आप ये समझेंगे कि अगर उस आइडियल चीज़ को आप पाना चाहते हैं, उस आइडियल सिचुएशन तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अपना वे बदलना पड़ेगा, आपको अपना सच्चा वे अपनाना पड़ेगा। तो मैं आपको हर चीज़ तो इस फीडबैक में नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि आप ज़रूर ये शिविर अटेंड करिए। आपको अपनी लाइफ में बहुत क्लैरिटी मिलेगी और आप अपनी फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। नमस्ते, મારું નામ કટેશિયા પંકજ છે અને હું SY BSc કેમિસ્ટ્રીમાંથી આવું છું। આ શિબિર ભર્યા પછી મને અમુક વસ્તુઓ ઉપર મારું ધ્યાન ગયું, જે હું તમારી સાથે શેર કરવા માંગીશ। જેમાંની પહેલી વાત છે કે કંટ્રોલ। તો આપણો કંટ્રોલ આપણા ખુદ ઉપર હોવો જોઈએ, મતલબ આપણો કંટ્રોલ છે બીજા કોઈના હાથમાં હોવો ન જોઈએ। બીજી વાત કે જીવવું અને જીવતું રહેવું એ બે અલગ વસ્તુ છે। અત્યાર સુધી હું બેને એક જ માનતો હતો,
અને ત્રીજી વાત કે સારું હોવું અને ખરેખર સારું લાગવું એ પણ બે અલગ અલગ વસ્તુ છે. ત્યારબાદ તો કે આપણે પરિવારમાં સંબંધપૂર્વક જીવવા તો માગીએ છીએ પણ રહી નથી શકતા, એ શા માટે થાય છે એવું બધું. ત્યારબાદ તો આપણે ખુદને જ પ્યાર નથી કરતા ને એટલે જ આપણે બીજા પાસેથી આપણે એવી અપેક્ષા રાખવી પડે છે કે આ બીજું કોઈ આપણને પ્યાર કરે. તો આ શિબિરમાં મને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું અને આત્મીય પરિવારે આ સરસ ઇવેન્ટ અથવા તો શિબિર ઓર્ગેનાઇઝ કરી એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર એમનો. થેન્ક યુ. નમસ્તે, મારું નામ સલોની કુંડાળિયા અને હું બીએસસી મેથેમેટિક્સ કરું છું. જ્યારે હું 10th હતી એટલે એમ કહી શકાય કે ચલો ને 12thમાં, તો ત્યાં સુધી મારા માઇન્ડમાં એવી માન્યતા હતી કે બીજા મારા માટે શું વિચારે છે એનો પ્રભાવ મારી લાઈફ ઉપર વધારે હતો. એટલે કે સપોઝ કે કોઈ મારા માટે કોઈ કમેન્ટ્સ કરે છે સારી ખરાબ, તો એનું હું વધારે દુઃખ લગાડી લેતી કે આ વ્યક્તિ મારા માટે આમ બોલી જ કેમ શકે, હું સારી છું તો બીજા મારા માટે કેમ ખરાબ વિચારી શકે છે. કોલેજમાં આવ્યા એટલે યુએચવીના સેશન સ્ટાર્ટ થયા. એમાં ઘણી બધી એવી વાતો પણ મને જાણવા મળી કે જે હું રેગ્યુલર લાઈફમાં જોતી હતી, પણ એનાથી મને એવું જાણવા મળ્યું કે હું મારી લાઈફ જે છે એ સારી રીતે જીવી શકું છું. જ્યારે આ 3 દિવસનો વર્કશોપ અટેન્ડ કર્યો, એમાં પહેલા જ દિવસે સરે એક વાત કીધી કે दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना ही मेरी अयोग्यता है. આ વાત મારા સૌથી સેશનમાં સૌથી વધારે કહી શકીએ તો મહત્વપૂર્ણ મને લાગી. બિકોઝ કે જ્યારે કોઈ આપણી ઉપર નેગેટિવ કમેન્ટ્સ કરે છે તો એનો મતલબ એ છે કે એ આપણને સમજી નથી શક્યા, અથવા તો એવું કહી શકીએ કે એ લોકો આપણને સમજવામાં સક્ષમ નથી. એનો ક્યાંય એવો મતલબ નથી થતો કે આપણે ખરાબ છીએ કે આપણી વ્યક્તિત્વ ખરાબ છે. આ વસ્તુ મને આ સેશનથી જાણવા મળી. બીજે દિવસે અમારે સેશનમાં એવી વાત થઈ કે જિંદા રહેના ઓર જીના દોનો અલગ ચીઝ હૈ. મતલબ કે આપણે એવું માનતા હોઈએ કે સવારે ઉઠવું, બ્રશ કરવું, નાહી ધોઈને તૈયાર થઈને કોલેજે આવવું અને પછી કોલેજ જઈને કોલેજનું વર્ક કરવું અને આ લાઈફ છે. તો હકીકતે આવી લાઈફ નથી. આને એક મશીનની જેમ જીવવું કહેવાય. હકીકતે જીવવું એને કહેવાય કે તમે રિયલમાં જીવો છો. તમે તમારી લાઈફમાં નહીં પણ તમે બીજાની લાઈફમાં પણ કંઈક સહયોગ આપી શકો કે તમે એને ખુશ કરી શકો. લાઈફ એક મશીનની જેમ જીવવા કરતાં લાઈફ એક સારા વ્યક્તિની જેમ જીવી એ બેટર છે. અને આજે મને એવું જાણવા મળ્યું કે આપણે જ્યારે આપણું આખું જીવન જીવીએ છીએ એ દરમિયાન આપણે ઘણા લોકો આપણે કહીએ કે પદાર્થ, પછી મટીરિયલ, કેટલી વસ્તુ એવી છે કે જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ પણ આપણે એને શું આપીએ છીએ તો કે આપણે એને કાંઈ નથી આપતા. એ લોકો આપણને સદુપયોગ આપણે એનો કરીએ છીએ પણ આપણે હકીકતમાં એનો સદુપયોગ નહીં પણ એનો દુરુપયોગ કરીએ છીએ. જેમ કે આપણે લોકો આપણી સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું તો આપણે લખવા માટે બુક્સ બનાવીએ છીએ. બુક્સ ક્યાંથી, પેજ ક્યાંથી આવે તો કે એ વૃક્ષો કાપીને આવે. તો એ લોકો આપણને કામ આવ્યા, એને આપણને મદદરૂપ થયા. આપણે શું કર્યું, આપણે એવી કેટલી નાની નાની એવી વસ્તુ કે જે આપણી પાસે ઓલરેડી હતી પણ તો એનો દુરુપયોગ કરીએ છીએ. સો એ વસ્તુ એક આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ. અને એવી બીજી કેટલી વાતો મને ખબર પડી કે જે મને જીવવામાં હકીકતે મદદરૂપ થશે અને હું લાઈફમાં એ વસ્તુ મારી ઉતારીશ અને મારું જીવન અત્યાર સુધીનું જે હતું અને હવે જે હશે એમાં ઘણો ફરક હશે. હું બની શકે હું અત્યાર સુધી એક મશીનની જેમ મેં જીવું પણ હવેથી હું એક માણસની જેમ જીવવાની ટ્રાય કરીશ ને એક માણસ બનવાની ટ્રાય કરીશ. થેન્ક યુ.